الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلال نس بی اک سات نصیحت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور اور بھی اسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آل استامت. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے اہل کتابن ہز تم گمراہی بیان کہ یم کت کٹھنس توراتس مز تحریف کرن اور یم کت کٹھنس فرار اختیار کرن تورات نش اور ام پت آو تہندی تم عقید نفی تہ کرنے کہ اس زن یمو عقید پانے گوڑمت اس کہ اس نسا چھوئی نے جہنمک نار کہین اگر وی نارس مز تراؤنے آئے اس بہرحال الا ایام معدودات ہمیں چند دنوں کے لیے وہاں پر چھوڑا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمو وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو اپنے دین پر اپنے آبا و اجداد پر اور اپنی جو نسل تھی اس پر فخر تھا اور اس طرح سے انہوں نے اللہ پر ایک بہتان باندھ لیا. یمچ نہ حقیقت یا یمچ نہ بنیادہ اس کہین. ام پتہ فرمایو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یمن لوکن ہند کیا حال آس قیامتک دہ یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان گنڈن چھ. بہرحال اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا تھا ان لوگوں کو اور وہ اصول بیان کیا تھا کہ قیامتک دہ پریت کا انسان یہ زن اس کو وہی بدلہ ملے گا جس کی اس نے کمائی کی ہوگی. آز چیم زن آیات ز آئے مبارکہ کر میں تہ برو تلاوت یمن ہز فضیلت احادیثن مز واریاہ زیادہ وارد سپدیمز اور ان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آئے ہیں تم پڑھے اس پتمس درسس مز کہ میں ونو کہ یہ زن سورہ یا فرض نمازو پتہ یہ زن یم آیات تلاوت کر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی 70 حاجات کو روا کرے گا. اور تمہیں مجھے کم کھوت کم حاجت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کرے گا. یہ پوڑ اسی حدیث پات کو نت. بہرحال یم آیات یم زن یمن آیاتن اک خاص پس منظر سو پس منظر کیا اس کے لیے ہم پھر دوبارہ لوٹتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف. یم ساتن ایسے آیت نمبر 12 یمے سورج پڑھو تات مز آیو اہلی کتابن ون کہ کیا آپ نے ان دو گروہوں کو نہیں دیکھا کہ جنگ بدرس متعلق زن اشارہ آیو کرنے کہ بظاہر مسلمان انتہائی کمزور اور تعداد میں بالکل کم تھے. کفار انتہائی زیادہ تعداد میں تھے بلکہ اگر پریسائزلی ونو تم لگ بھگ 3 گنا سے بھی زیادہ ان کی یہ زن تعداد یا کثرت تھی اور سامان ان کے پاس کثیر تعداد میں موجود تھا. مسلمان بظاہر نہت تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جس گروہ کے ساتھ جس تنظیم کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو ان کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے. تم پت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اک پیشن گوئی مکہ ہوں یا چاہے وہ اہل کتاب ہوں انہیں کہا گیا تھا اور انہیں خبردار کیا گیا تھا انہیں پیشن گوئی دی گئی تھی ستغلبون کہ عنقریب آپ مغلوب ہو جاؤ گے. اور میں کرے تم ساتن تہ عرض یہ تمن حالاتن مز یہ پیشن گوئی آمز دن جب مسلمانوں کی حالت انتہائی تشویشناک تھی. یعنی ابھی نہ ابھی
डर लगा रहता था कि कोई ना कोई इनको उचक ले जाएगा तुमन हालात में, जबकि मुसलमान बिल्कुल कमजोर हालत में थे। उन हालात में ये पेशन गोई की गई थी कि कुफार को कहिए, उनको खबरदार कीजिए कि अनकरीब आप मगलूब हो जाओगे। बहरहाल अथ मामलस में इस पस मंजर को आप जहन में रखिए और इन आयात का अब हम मुताला करेंगे। और यम आयात यम जन आज आयात उमन ब्या पस मंजर सह कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो आयात यम आयात यम जंग खंदक किस मौके पर नाजिल गमज। जंग खंदक यस जन आपको पता होगा कि यम जन आतश परस लुक रूम और फारस की बहुत बड़ी फौज वो हमला आवर हो रही थी किन पर, मुसलमानों पर। और मुसलमान हालत क्या साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पहनने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था, यानी इंतहाई गुर्बत किस हालत में और इंतहाई कसम पुरसी हंदिस हालत में मुसलमान पे हमल करने दुनिया ज सुपर पावर, रूमी फौज और यम जन यम फारस की फौज, और यम तम साथ के बड़ ज सुपर पावर आसन। अब मदीने पाक का दिफा करने के लिए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दिवन तजवीज कि या रसूलुल्लाह यम सातन ये जंग हम उस वक्त खंदके खोदते थे, तम सातन क्या खोदन खंदक। तो ये तजवीज बहुत पसंद आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यम तिश करन इंतजाम मदीने पाक नसा हकन यमन से डायरेक्ट लड़ित, तो इसलिए हम मदीने पाक के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी खंदक खोदेंगे। खंदक मानते तो या पे बनो खोड़। बहरहाल यम सातन ये खंदक आए खन और ये हालत थी कि मुसलमानों के पेटों पर पत्थर बंधे हुए थे, यानी खून की तो गजा पूर, बल्कि रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। यूता उस हालत मुसलमान हिज। बहरहाल इन्हीं हालात में रिवायत सीरत किताबन मज पढ़मुत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुदाल चलाई है, यानी रसूलुल्लाह पान तम सात कुदाल चलम खन खतर पान बनफ्स नफीस मौजूद। तो इसी असना में इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुदाल चलाते हैं, ये कुदाल पेवन अकिस बड़िस चट्टानस पे और उसमें से वो चिंगारियां उठती हैं। और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहि अगर तिहंज किताब पढ़ी उसमें ये वाक़ा तफसील से मौजूद है। तथ में लिखित कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाज पे वनो अत कहीं पे अगाई नार छिप, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा से कहा कि इन चिंगारियों में मुझे कैसर और किसरा के महल दिखाए गए, यानी यमन चिंगारियों में आम हावन कम कैसर और किसरा महल। और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशन गोई की थी, अपने सहाबा से कहा था कि अनकरीब वक्त आने वाला है जब कैसर और किसरा के ताज आपके पैरों में होंगे, यानी अनकरीबी वक्त यम साथ कैसर और किसरा ताज मासन तुंदन खोरन। उस वक्त जबकि मुसलमानों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम साथ चाहिए। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने दिया साबित कर हजरत उमर फारूक रज़ी के दौर में बाज़ाब्ता कैसर और किसरा के ये ताज बिल्कुल मुसलमानों के कदमों में आ गए। अथ असनाहस मज यम जन अहली किताब खुसूसी तौर पर हालांकि ये खिताब तो सबों से है मगर खास तौर पर कमन आमद बन, क्योंकि ये किस्सा किन का चल रहा है, मुखातिब कौन है, अहली किताब। यमो बनो तम साथ बड़ प्रोपागंडा और हंसी मजाक हतो वुशन छो नबी कह रहा है मुसलमानों का नबी क्या है, जिनको पहनने के लिए कुछ नहीं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं, सुचु आज वन मे आय वो हावन कैसर किसरा महल और अनकरीब यम महलातन हिंद यम ये कैसर किसरा के जो ताज है ये मुसलमानों के कदमों में होंगे। बहरहाल अम सातन बनो वो बड़ इस्तेहजा और ये ठठा मजाक करते थे मुसलमान। वुशन छो ये नबी तुहन वन या तुहन सरदार वन ये खोन क्युत जुड़न कह, अगर ये वक्त नबी आसे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक तेल आसे वो खोन क्युत जुड़न कह, तेल आसे वो लागन क्युत जुड़न कह। और यह आज वन कि अनकरीब वक्त इन वोल कैसर किसरा ताज यम जन यह आपके कदमों में होंगे। तो इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ये आयात नाजिल करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहली किताब से या इन मुशरिकीन मक्का से या दुनिया के लोगों से, मगर खास तौर पर कमन मुशरिकीन यमन अहली किताब वनियो हाज कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है उसको सल्तनत अता करता है, यानी अल्लाह ताला यमिस बेसी तमिस करे बादशाही तो सल्तनत अता।
इनको ये बईद लगता है, यमन छा बासन ये दूर, यमन छा बासन ये नामुमकिन कि मुसलमानों क्या ही न एक वक्त इक्तदार अथस मज के, बल्कि ऐसा होकर रहेगा। अल्लाह जिसको चाहता है इक्तदार उससे छीनता है और जिसको चाहता है उसको ताकत पर बिठाता है। इससे पहले भी ये हुआ है। फिरौन सोच केम सल्तनत और केम बादशाहत मालिक, मगर अल्लाह ने जब पकड़ा तो बहरहाल एक भी उसकी न चली। इथे पठन ऐसा भी हुआ है, हमने सूरह बकरा में पढ़ा, तालूत बज़ाहिर युजन बिल्कुल क्या उस गरीब, और एतराज भी किया था अहली किताब ने कि केमिस बनायु तो सोन सरदार पढ़ना है, वो तो बज़ाहिर बिल्कुल गरीब आदमी था, मगर अल्लाह जब चाहता है तो उसको भी ताकत पर बिठाता है। तवया इतन वन या रसूल यमन अहली किताबन वनियो हाज, और मुसलमानों इन अहली किताब को कहो कि तुम इस्तेहजा करन, तुम मजाक करन कि ये मुसलमान क्या ही इक्तदार। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, या रसूल आप इनसे कह दीजिए कि माल मुल्क जो है या बादशाह जो है, सल्तनत जो है, इसका मालिक कौन है? अल्लाह। जिसको चाहे उसको ताकत पर बिठा सकता है और जिसको चाहे ताकत पर से उठाकर बिल्कुल फर्श पर बिठा सकता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसको ये बादशाही अता करता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिसे चाहता है उसको जलीलो खार करता है, उसको ताकत से उठाकर बिल्कुल फर्श पर बिठाता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको इज्जत बख्शता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है उसे जलीलो खार करता है। यानी इशार शिमने अहली किताबन को कि अल्लाह ने आप तक आपको बादशाहत भी दी थी। ठीक है, सूरह बकरा में बनी इसराइल उसका बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इन्हीं बनी इसराइल में से थे, मगर अल्लाह ताला फरमान अल्लाह जिसको चाहता है उसको बादशाही देता है, जिसको चाहता है उसको जिल्लत भी देता है। यानी इशारा इसकी तरफ है कि अब आपकी जिल्लत का और आपकी मगलूबियत का वक्त अनकरीब, और जो आप कहते हैं कि कैसर और किसरा खबर ही किस पर गए, ये भी होने वाला है। क्या है? क्योंकि बादशाह सल्तनत इस तमाम का मालिक और ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाता बियदिकल खैर, ये सब कुछ ये खैर किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। बल्कि ये तंच मुफस्सिर देखो नक्त बियदिकल खैर, ये बा जो है ये बा अतन आमद गन बियदिकल खैर, इससे हिसर पैदा हो गया। हिसर पैदा हो गया क्या मतलब? यानी सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में ये है, बीशन कांस अथस मज ये कांस तगन गरी सहित हक ने कांस बादशाह मिलित के, कांस हिंद टैलेंट सहित, कांस हिंद रिसोर्सेस सहित, कांस हिंद मैन पावर सहित हक ने कांस बादशाह लभित के, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जिसको चाहता है उसको बादशाह अता करता है, जिसको चाहता है उसको जिल्लत और उसको फकीरी देता है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और ऐसा क्यों होता है? इन्नका अला कुल्ली शैइन, अल्लाह के यहाँ इसमें कोई इख्तियार या अकेले कोई देर नहीं लगेगी। ये अल्लाह तआला निश का बईद आज कयास का कथ के, बल्कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। दयम कथ इस अत मज लतीफ इशार आमद दिन, यानी इशार आमद मुसलमान दिन, वो क्या है? वो ये है, ये नुक्ता लिखमुत अत एक मुफस्सिर और मुझे बहुत पसंद आया ये, और ये हकीकत भी है। सो ये अल्लाह ताला फरमाता कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह तबारक व तआला से रसूल मुखातिब कहते या रसूल इनको कह दीजिए, इन अहली किताब को खास तौर पर, कि तुम मजाक उड़ावन इन मुसलमान, तुम इस्तेहजा कर मुसलमान के हो, तुम लागुन क्युत के, तुम खोन क्युत के, और तुम ख्वाब वुचन कैसर और किसरा। या रसूल इनसे कह दीजिए कि बादशाहत मुल्क ये सब कुछ शहनशाही या असल में किसके हाथ में है? ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहता है उसको बादशाह बनाता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको फकीर बनाता है। और ब्याख रबत तिशात ब्याख ताल्लुक तिशमन आयात, वो क्या है? पचमन आयतन मुझ पोड़ कि ये अहली किताब कितने सरकश थे। ये अहली किताब कत्या सरकश कि तहरीफ कर पाने कमन मज तौरातस मज किताबन मज पाने तहरीफ कर आसमानी किताब। एक तो ये, दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बरहक समझते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बरहक जान, और जो निशानियां आखिरी पैगंबर की इनकी किताब में थी वो निशानियां इन्होंने तमाम की तमाम किसमें देखी थी? रसूलुल्लाह। मगर इनकी वो अना, इनकी वो दुनियावी अगराज और दुनियावी मफादात वो हाथ से न निकल जाए, इसलिए ये इन्होंने किसका इनकार किया था? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का इनकार। तो यह भी इशारा है कि ऐ बनी इसराइल, आप इन मफादात को हाथ से जाने के लिए नबुव्वत की इस आला नियामत को ठुकरा रहे हो।
यानी तुम सिर्फ यमो हकीर मफादात खतर यूता बड़ नामत खुदाए सज अल्लाह ताला सज ठुकरावन, जबकि अल्लाह अगर चाहे तो ये सारी चौधराहट, ये सारी जो आपकी बादशाही है इस मदीने पाक में या अरब में, या आपकी जो ये इज्जतें हैं, ये इज्जतें देने वाला असल में कौन है? यह दुनिया के मफादन दुनिया के यमन हकीर मफादात तुहद इज्जत वाबस्त, बल्कि अल्लाह चाहे तो आपको ऐसे भी जलील कर सकता है। ये ब्याक इशारा। और तीसरा इशारा जो इसमें है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनडायरेक्टली तालीम करना कि आपने देखा कि ये कितने सरकश हैं, तुम वुचु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम जन अहली किताब यम कत्या इंतहाई सरकश, ये आपकी नबूवत का इनकार करते हैं। और आपने मुशरिकीन मक्का को भी देखा कि यम किस आए तुह पे बद्रच चढ़ाई हेत, ये तो आपने देखा। अब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुहदिस अतस मज गछ क्या आसन इक्तिदार। तो इसलिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इक्तिदार अता कीजिए, तिकाज दुआ की शक्ल में आमत कुल्लिल्लाहुम्मा मालिक, या रसूल तुम वनियो हाज कि मुल्क यह बादशाह यह कमिस खतर ये अल्लाह के हाथ में। तो मुफस्सिरीन ने कुछ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में दुआ सिखाई जा रही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदायस दुआ कि यम अल्लाह ताला सन्द बागी तो सरकश कौम यमन स्योद करने खतर गस में अतस मज क्या आसन इक्तिदार, इसलिए मुझे इक्तिदार भी अता कीजिए। और बदकिस्मती यह जन मौलाना सलीमुल्लाह खान बोड़ बार मुहद्दिस गुजरेमुत, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि मुझे हसरत होती है आज के उलमा पर जो दिन भर बुखारी और मुस्लिम का दरस देते हैं और तफसीर का दरस देते हैं, मगर फिर भी वो सियासत से किनारा कशी करते हैं। मगर इन बावजूद तुम कभी निष्कार किनारा कशी, और जब उनसे कहा जाता है कि सियासत और इक्तिदार के लिए आप तगदो करो, वो कहते हैं कि हमें सियासत से कोई सरोकार, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई जा रही है कि इन सरकश कौमों को, इन बागी कौमों को ठीक करने के लिए अल्लाह से आप इक्तिदार की और बादशाहत की आप दुआ कीजिए। वो मुसलमान युजन छे, इसीलिए इस आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक उसी मौके पर वो मुबल्लिग भी थे, उसी मौके पर वो मस्जिद के इमाम भी थे, उसी मौके पर वो मुस्लिम भी थे, मगर उसी मौके पर वो जनरल भी थे, तम साथ फौजी जनरल, और उसी मौके पर वो मदीने पाक के बाज़ाब्ता सरबराह भी थे। तो तमो लिखमुत अमकिस तफसीरस मज कि मुसलमान हंद जवाल बुनियादी वजह वो ये है कि उलमा हजरात ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, कि खुसूसन यम जन उलमा तमो किनारा कशी कर इख्तियार कम निश, जब उन्हें कहा जाता है कि दुनिया में फसाद मच रहा है, बाजार में फसाद, तुम दबर अस क्या आसिद क्या, बल्कि वो सिर्फ कहते हैं कि हमें तबलीग करनी है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर इन आयात में हुक्म किया जा रहा है कि आप अल्लाह से इक्तिदार के लिए और सियासी इक्तिदार के लिए अल्लाह से दुआएं मांगिए। अम पच अल्लाह ताला फरमाउन तूलिजुल लैला फिन नहार। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है कि यह खुदायस निश बईद क्या कि इन निहत्ते, इन कमजोर, इन भूखे, इन मुफलिस मुसलमानों को इक्तिदार अदा करे। तुम क्या अत पे असुन योन, यानी इन अहली किताब तुम असुन योन अत कथ पे कि तुम बासन यह बईद, तुम बासन यह नामुमकिन कि मुसलमान थी यह इक्तिदार कुन दो। अल्लाह ताला फरमान क्यों नहीं आ सकता है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब फिर अल्लाह ने मिसाल दी है जिस पर तुम नामुमकिन बासन, जरा इस मिसाल की तरफ गौर करो। तूलिजुल लैला फिन नहार, अल्लाह वो जात है जो रात में से किसको निकालता है, तूलिजुल लैला फिन नहार, जो दिन में से रात को निकालता है। अरे बाज़ाहिर तो ये नामुमकिन नजर आता है, ओ तामतोस दो, अब अचानक क्या पैदा हो गई रात, क्या दुनिया के लोग मिलकर दिन में से रात निकाल सकते हैं? नहीं। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, अल्लाह वो जात है जो दिन में, जो तूलिजुल लैला फिन नहार, जो दिन में से रात को निकालता है और रात में से दिन को निकालता। काल शंगित बसान अमा सुबह यम साथ वथन खोल क्या गाठ, तो ये रात में से दिन को निकालने वाला कौन है? बाज़ाहिर तो ये दुनिया के लोगों के सामने बिल्कुल नामुमकिन है। अभी हम दिन में खेलते थे, कूदते थे, मगर आफ्ताब को गुरूब, तो अब आफ्ताब गुरूब होते ही दिन में से क्या निकला? रात निकला।
کیا دنیا کے لوگ اس کو بنا سکتے ہیں؟ دن میں رات اور رات میں دن لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پر یہ تہی خاطر ناممکن چھ. اسی طرح آپ کو یہ بات ناممکن لگتی ہے مگر اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے کہ وہ رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے. اگر وہ اس پر قادر ہے تو وہ مسلمانوں کو اقتدار پر لانے کے لیے کیسے قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ اور دویم تفسیر چھ ات یہ اکس جائے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لکھا ہے آیت نمبر 73 پڑھ جاتا ہے، وہ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میری رحمت ہے، یہ رحمت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کس کے لیے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. ام پچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مشرکین مکان یمن دنیا کے لوگوں ونتو قل یا رسول فرمایا ارائیتم کیا آپ نہیں دیکھتے ہو ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آپ پر صرف دن ہی دن رکھے یعنی صرف تھا دہائی یوتن الی یوم القیامہ کب تک؟ قیامت تک. من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو آپ کے لیے رات لا سکتا ہے لتسکنون فی تاکہ آپ اس رات میں کیا کرو؟ آرام کرو. افلا تبصرون کیا آپ ان باتوں پر غور یا آپ نہیں دیکھتے ہو؟ اور ام 50 قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم یا رسول میون مانتو کیا تۄہہِ چھُنا نظر یِوان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ قیامتس تام رات ہی رات تھایہِ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالنہار کون ہے اللہ کے سوا جو آپ کے لیے دن کی روشنی کا انتظام کرے تاکہ یاتیکم بضیاء تاکہ آپ کو روشنی کا انتظام کرے تو وشو دنیا گاش. افلا تسمعون کیا آپ ان آیات پر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا آپ ان نصیحتوں کو نہیں سوچتے ہو؟ وہ یہ دن اور رات کا چکر ریزن یہ کون لانے والا ہے؟ اور بیاکھ تفسیر مفسر کرمز یہ کہ جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ یعنی وندس مز وچھان دہ آسان لکٹ رز کیا بجہ اور بہار میں کیا ہوتا ہے دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. بری مثال تھی اور وچھان آز اب آج یم سات آز وچھان غروبی آفتاب کر گژھان 7 بجے لگ بھگ تو 7 بجے کا ٹائم یہ دن کا ہی ٹائم ہے مگر 7 بجے پتہ کس ٹائم رات ٹائم گژھان شروع مگر اب جب ہم آگے چلیں گے یہ جون جولائی مز گھو تمہ سات آفتاب لوسان کم سات 8 بجے تو یہ 7 سے 8 بجے کا 1 گھنٹہ یہ کس میں داخل ہو گیا؟ یہ تو اب دن میں داخل ہو وہ رات کے وقت کو دن میں داخل کرنے والا یہ کون ہے؟ اللہ. اتھے پٹھن یم ساتن وندس کن گھن تو دن کو رات میں داخل کون کرتا ہے؟ اللہ. یعنی 8 بجن تائیں اوس ونس تائیں دہ مگر یہ روت یہ وند واتن پتہ 5 بجے گھن کیا غروبی آفتاب یا 5 بجے رات شروع گھن تو یہ دن کے یہ گھنٹے اس کو داخل کیا گیا کس میں؟ رات میں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ دن کو چھوٹا کرنا اور رات کو بڑا کرنا رات کو پھر چھوٹا کرنا دن کو بڑا کرنا یہ کس کے دست قدرت میں؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرمان تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل اللہ وہ ذات ہے جو دن رات میں سے نکالتا ہے اور رات دن میں سے نکالتا ہے. وتخرج الحی من المیت اور اللہ وہ ہستی ہے یس زن زندہ چیز کڑان کمس نش؟ مردس نش. یہ زن ٹھول آسان پرندوں کے جو انڈے ہوتے بظاہر بالکل یہ کیا میت اس میں تو کوئی جان نہیں ہے مگر اللہ کا کرنا کہ اسی انڈے میں سے ایک بالکل زندہ جاوید کو شکارن پوت نیرن تم تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی اور زندہ میں سے کیا نکالتا ہے؟ میت. یہ برڈ لیونگ مگر انسان نے ٹھول بظاہر باسان ہے بالکل نان لیونگ کیا باسان گو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے. تو یہ کس کی قدرت اور یہ کس کی طاقت ہے؟ کیا دنیا کے لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ اتھے پٹھن وچھتے گاو یہ بالکل لیونگ مگر امس مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کڑان یہ تو بالکل نان لیونگ ہے. یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. اور قوموں کا بھی یہی حال ہے اور انسانوں کا بھی یہی حال ہے. بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کمس زاو؟ آزر ان کے باپ ہیں. آزر بظاہر مردہ عقیدے کے لحاظ سے بالکل مردہ مگر مردہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زندہ انسان کو نکالا جس کا عقیدہ زندہ ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ. وقت کا نبی حضرت نوح علیہ السلام زندہ عقیدہ والا انسان مگر اس میں سے ایک مردہ عقیدے والے انسان کنان کو نکالتا ہے تم سے نیچو.
तो जिंदू में से मुर्दू को निकालता है, मुर्दू में से, तो ये किसकी मजाल और ये किसकी ताकत है? ये अल्लाह की ताकत है। वतारज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह चाहे तो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। यानी बज़ाहिर वुचन दुनिया पान तजुर्ब कोर्मुत, बज़ाहिर शक्ल अकली तीता इंसान गए गुजरे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी दौलत उनको दी होती है, और ब्याक शख्स PhD कर डॉक्टरेट कर, मगर वो फुटपाथ पर भीख मांगता है या वो नौकरी के लिए तरसता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमान वतारज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। मे गो अजीब आज इत्तिफाक, आज गुजरे सावन पास नफरा बजान तम सद बच्चे सानिस स्कूल पढ़ान, अल्लाह गवाह उसके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, मतलब बासन में ये अच्छा आज तमिस गो अत क्या वन ये सह मूद SMH पतम 15 दोहन एडमिट, पुलिस गाड़ 2-4 खस तोड़, बह गोस हराम पुलिस कम खतर, तो पता चला तम सद अकाउंटस में 90 लाख रुपये। अच्छा ये क्या बज़ाहिर मतलब ये क्या बात है, गुजर मालदार साकिन जटा लगित, तो अल्लाह ताला की ये आयत मुझे उस वक्त याद आ गई, वतारज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला शिमर मुशरिकीन मकान और अहले किराम फिक्र तारन, अरे रात को दिन में लाने वाला ये कौन है? अल्लाह, उसके लिए कोई मुश्किल ये नहीं है। जरा दुनिया के लोग सभी मिलकर करतो एहतिजाज या कोशिश करतो कि 7 बजे गोलूबी आफ्ताब ये रुको 2 मिनटन, ताकि रात कैसे नहीं यी, तो इस दिन को रात में कौन दाखिल करता है? किसी की ताकत है? इथे पठनस अंडे में से चूजा पैदा करता है, यह किसकी ताकत है? अल्लाह। पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक अंडे को पैदा करो, या अकिस पकड़ करतो दो सारी रूजतो तस्बी फिरन, सारी रूजतो अमिस क्या डाइट दिव न्यूट्रिशन दिव, सारी क्या एक्सपेरिमेंट करतो, ये कैसे ठूल त्रावन है क्या त्र मुर्गा अंडा डाल सकता है ना? तो ये किसकी मजा और ये किसकी ताकत है? ये तो अल्लाह की ताकत। तो इन मुशरिकीन मक्का और अहली किताब को समझाया जा रहा है, यम चीज तो बासन नामुमकिन मगर अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान और मुमकिन है। तो आपको मुसलमानों का इक्तिदार पर आना, कैसर और किसरा के ये ताज उनके पाँव में आना तशु बासन ये बईद अज कयास, मगर अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ढारस भी बंधाई गई है, तुमन आमद हौसला अफजाई कर, तुमन आमद हौसला दिन कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका इस्तेज़ा करते हैं, यम तह मजाक उड़ावन, यम तह अत क्या हंसी और ठठा करते हैं। अरे अल्लाह के लिए जिस तरह दिन में से रात निकालना, रात में से दिन निकालना, मुर्दे में से जिंदा पैदा करना, जिंदा में से मुर्दा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है कि जो मुसलमान आज निहत्ते बिल्कुल फकीराना जिंदगी बसर करते हैं, कल को यही किसरा और कैसर के ताजों के साथ खेलते होंगे। बहरहाल ये वो बशारत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, और इसमें तरबियत भी है, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ भी सिखाई गई है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इक्तिदार, खुसूसी सियासी इक्तिदार के लिए अल्लाह से दुआएं मांगा करें। रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि सुदीन सिमान आयात पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।